Good morning students, welcome to our YouTube channel. In this video, I am going to explain the first chapter of the History and Civics 8th Standard Maharashtra State Board new syllabus. So the history you feels boring subject. History is a very interesting subject and both history and civics not only will be beneficial for your this academic year आपके 8 standard subject की ऐसा important ना सिर्फ ऐसा important है बल्कि it will definitely help you for your competitive exams like your 8 standard scholarship exam and in your futures competitive exams like MPSC and UPSC. So first of all, the first question I am asking from you, why do we have a subject like history and civics? History subject आपको है क्यों? You are learning history from 4th standard, now you are in 8th standard, right? History is a subject placed in your syllabus because to learn from the past. Like in this year, within a 1 minute, I will summarize the whole history book of your 8th standard. इस history book में आप पढ़ोगे first chapter, sources of history, then second, how the Britisher came as a traders and they assess the situation, monitor the situation, how the Indian rulers disintegrated, they were losing their powers, they were disintegrated, ये united नहीं थे, तो उसका ये फायदा अंग्रेजों ने उठाया and they took the advantage of that things and defeated one by one each ruler of India and one day come they capture whole India and rule over India near 200 years. तो 200 साल हमें आज़ादी हो हमारे देश को आज़ाद हो कि अभी 75 साल कंप्लीट नहीं हुए 75 years we have not so far completed from independence and the Britishers rule over India for 200 years. So why these outsider rule over India for 200 years? That we learn in this book through the lot of chapters will teach us. So बहुत सारी क्वालिटीज़ है क्योंकि उस वक्त हमारे इधर हमारी सोसाइटी इंडियन सोसाइटी बहुत बैकवर्ड थी, इलिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा था हमारा 90% इलिटरेसी लेवल था आज से 150 साल पहले, राइट? लेकिन आज हमारा इलिटरेसी 82% सॉरी हमारा लिटरेसी लेवल हमारे एजुकेटेड लोग मोर देन 85% है, इलिटरेट ओनली 10 to 15% है, तो इसके बिल्कुल रिवर्स उल्टा था आज से 100-150 साल पहले, तो एक रीज़न है. एंड सो अब देखिए 1947 में हमें आज़ादी क्यों मिली? बिकॉज ऑफ द लिटरेट एजुकेटेड लीडर्स, मोस्टली पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, Dada Bhai Nauroji, these were the educated, Dr. Ambedkar, they were well qualified leaders, so they make well planned strategy. So हमें भी कोई भी काम well plan करके करना चाहिए, well organized manner में करना चाहिए, और education is the most powerful weapon we have. So with the help of that weapon, our country released from British slavery. Now come to the civics. Civics, the study of the rights and duties of citizenship, right? Civics हमको सिखाती है कि हमारे rights क्या है, हमारे हक क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारी जिम्मेदारी, हमें क्या काम करना चाहिए, राइट? रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाती है, राइट? और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनते हैं, ये हमारे जो लेजिस्लेचर है, कौन लेजिस्लेचर है? लेजिस्लेचर 3 पार्ट्स में है इंडिया में, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. सो गली से दिल्ली तक के जो कानून बनते हैं हमें और कैसे बनते हैं, कौन इम्प्लीमेंट करता है, इसके बारे में हम सिविक्स में पढ़ेंगे, राइट? सो हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक एंशियंट हिस्ट्री, सेकेंड मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. So in 6th standard you learn about the ancient history like Harappa civilization, Mohenjo-daro, Ashoka, etc. In 7th standard you learn about the medieval history, medieval between the modern and ancient, like शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा, then दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, etc. And this year you are going to learn about the modern Indian history, right? कि how the Britisher came as a trader, how the Britisher came as a trader and they took advantage of the situation of the disunited leadership of the Indian, because the Indian leaders were not so strong, so they easily removed one by one Indian leaders. In a coming chapter that we will see, सेकेंड और थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे कि एक के बाद अंग्रेजों ने किस तरीके चालाकी से कॉन्स्पायरेसी के जरिए, साजिशों के जरिए इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन लीडर्स को, इंडियन जो भी राजा महाराजा बादशाह थे उनको हराया और उनके
उनकी हुकूमत को पूरे इंडिया में 200 साल तक के राज कायम करके 200 साल तक के राज किया। नाउ फर्स्ट चैप्टर इज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब सोर्सेस ऑफ मॉडर्न, ऑलरेडी यू लर्न अबाउट द फर्स्ट इन 6 में एंशियंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, लाइक स्कल्पचर्स वगैरह थे, दीवार पे लिखते थे, पेंटिंग्स वगैरह थे। देन मेडिवल में आपने देखा कि जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेस 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा। नाउ दिस ईयर इज द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सोर्सेस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सोर्सेस ऑल्सो इंक्लूड द ऑडियो विजुअल सोर्सेस, इंक्लूड द फिल्म्स, फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स एक्सेट्रा, क्योंकि उस वक्त रेडियो भी था, फोटोग्राफ्स भी थे, जैसा कि इसीलिए हमारे पास गांधी जी के, डॉक्टर अंबेडकर वगैरह के फोटोज हैं, उनकी स्पीचेस हैं, राइट। अब नाउ मटेरियल सोर्सेस लाइक बिल्डिंग, प्लेसेस, स्टैचूज। फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि आगा खान पैलेस बना हुआ है, स्टैचूज, शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फुले के स्टैचूज हमारे शहर में है, हमारे सिटीज में, एवरी सिटीज हैज अ शिवाजी महाराज स्टैचू। So written sources, newspapers, books, magazines, etc. and audio visuals already done. Then material sources, one by one we will see the pictures. Like these pictures of the, मैंने ये पिक्चर क्यों चूज किया, क्योंकि ये जो है अंग्रेजों के जरिए ये इमारत, ये बिल्डिंग बनाई गई थी। दिस स्ट्रक्चर मेड बाय द ब्रिटिश, इट इज नोन एज द पार्लियामेंट हाउस। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर इट इज द प्लेस वेयर आवर रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं फॉर द लैंड ऑफ इंडिया। हमारे देश के लिए जो कानून बनते हैं वो इस इमारत में बनते हैं, इसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। क्योंकि ये मिडाइवल अंग्रेजों के जरिए बनाया गया, इसलिए मैंने इस इमारत को चुना। अब इट इज़ वन ऑफ द मटेरियल सोर्सेस बिकॉज वी लर्न फ्रॉम द स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर आपको इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारा गांधी आश्रम है, गांधी जी का आश्रम वर्धा में। इट इज़ ऑल्सो, इट टेल्स अबाउट द गांधी जीज वर्क्स। बहुत सारी जो मटेरियल्स हैं और गांधी जी के मतलब वॉट एवर देयर ड्रेसेस, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो गांधी आश्रम में रखी गई है। एंड यू नो अबाउट इट इज़ कॉल्ड, what do we call this? It is before 2 years ago it was inaugurated by our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. It is called the Statue of Unity. The Statue of Unity is related to the Sardar Vallabhbhai Patel. Why? Because in a coming chapter, I think in the last second chapter of this year, हम हमारी इस बुक के लास्ट सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि आज़ादी के वक्त हमारा आज एट प्रेजेंट इन 2020 में हमारा देश एक यूनाइटेड कंट्री है। हमारे पास 28 रियासत है, 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। But at the time of independence, our India is divided among the more than 500 princely states. छोटे छोटे गांव और शहर भी के भी राजा हुआ करते थे। तो हमारे इस लीडर ने अलॉन्ग विथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू put their special efforts to integrate India. So that's why इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया और इनके नाम से उनका स्टैचू बनाया गया है द रिवर नर्मदा पे, और उसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये जो है आप देख रहे हो कि हर शहर में, महाराष्ट्र के हर शहर में मोस्टली शिवाजी स्टैचू मिलता है। शिवाजी आवर लीडर, सो वी रेस्पेक्ट हिम, so that's why mostly cities consist of शिवाजी स्टैचू। एंड अरब सागर में शिवाजी महाराज का एक स्टैचू बनाया, ये स्टैचू है। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम इन योर माइंड, व्हाई इज गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट करोड़ रुपया खर्चा करके ये स्टैचू बनाती है, बिकॉज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फॉर यू, कि आप जान सको कि इन्होंने क्या काम किया था। और साथ साथ में ये एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट भी हो गया। अब बाहर के देश बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो वो हमारी एक फॉरेन एसेट से बढ़ता है, हमारी इनकम जनरेट होती है, हमारे देश को फ़ायदा होता है। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन गए हैं, तो इससे डबल फ़ायदा हो रहा है, आपका हिस्टोरिकल सोर्सेज भी हो गया है और एक सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो गया है। एंड एवरी स्टेट्स यू फाउंड दैट द महात्मा ज्योतिबा फुले स्टैचू। महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या काम किया था? बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया, इन पुणे। उन्होंने पहली लड़कियों के लिए स्कूल बनाई थी, इसलिए हम उनको याद करते हैं। और हमारे हर शहर में, महाराष्ट्र के मोस्टली शहर में महात्मा ज्योतिबा फुले के स्टैचू है। एंड इट इज़ द स्टैचू ऑफ लोकमान्य तिलक। लोकमान्य नाम से बहुत सारी, तिलक नाम से बहुत सारी स्कूलें हैं, इंस्टीट्यूशन हैं। इनके बारे में और इनका क्या वर्क है हम कमिंग
चैप्टर्स में देखेंगे। उन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए he has put his special efforts to release India from the foreign control. He put his special efforts, what he did during the First World War, that we will see in the, I think this 5th or 6th chapter. And it is the sculpture. Sculpture मतलब गार, गुफा जिसे कहते हैं। ये अजंता की गार है, अजंता एलोरा, आपने सुना होगा, हमारे हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। So this is the also the ancient sources of history, and it is the sculpture में ये भी ले लिया गया है, इसको कहते हैं अशोक इम्बलम। इट इज़ आवर नेशनल इम्बलम, हमारे यहाँ नेशनल सिक्का है जो भी नोट्स करेंसी पर और हमारे गवर्नमेंट के जो भी नोटिफिकेशन या गैजेटेड आते हैं उसके ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंबल है। आपने देखा होगा सिर्फ एक ही टाइगर दिखाता है, लेकिन ऐसे माउंटेड में एक के एक पीछे 4 टाइगर है। It is the India Gate. India Gate is made in the memory of those soldiers who lost their life during the First World War. अब ये बहुत सारे मैंने कॉइन्स के इमेजेस लिए हैं, इसमें से मोस्टली कॉइन्स डीमोनेटाइज हो चुकी है, जो कि अभी चलन में नहीं है, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ कॉइन। सारे के सारे डीमोनेटाइज हो चुकी है, जो कि कम से कम 10 साल पहले भी बहुत सारे इसमें से करेंसी 10 पैसा 20 पैसा चलते थे, लेकिन अभी सारे बन हो चुके हैं। Now come to the written sources. Written sources include the newspapers, biographies, factory records, foreign accounts, biographies, books, etc. So these newspaper especially बहुत सारे आज़ादी के वक्त during the freedom struggle, our leaders like Mahatma Gandhi, Dr. Ambedkar written the lots of newspaper and books. So they generally, क्योंकि उस वक्त कुछ आज के ज़माने में इंटरनेट है, टीवी है, उस ज़माने में बस न्यूज़पेपर ही था कि they can transfer their messages to the common people to awaken the people to come and join the freedom struggle, right? Newspaper like Amrit Bazar Patrika was the first newspaper during the freedom struggle. It was started from Kolkata, जो कि जिसे आप कोलकाता कहते हो, आज वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। दीनबंधु दयानोदय केसरी एक्सेट्रा। केसरी was started by लोकमान्य तिलक, है ना। It is the mouthpiece which from the Indians which awaken the people, and through the newspaper the people come to know the British policies regarding India and their effects on India. Like दादा भाई नौरोजी, क्योंकि न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों को अवेयर करते थे कि हाउ द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड आवर इकोनॉमी, एक्सप्लॉयटेड है ना, हमारे रिसोर्सेज ख़त्म कर रहे हैं और वो खुद हमारी दौलत ले आके ब्रिटेन में भर रहे हैं और हमारा देश गरीब होता जा रहा है। इसके ज़रिए न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों को जागरूक करते थे। देन मैप्स एंड ड्राइंग, इफ़ यू ऑब्जर्व द चेंजेस ऑफ मैप्स, आई कैन से जस्ट ऑब्जर्व द, इफ़ यू हैव द ऑक्सफोर्ड एटलस अगर आपके पास होगा तो देखिए वहाँ पर आप ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा मैप कैसा था और आज के दौर में चेंजेस उसमें बाकायदा हर एक एरा का हर 50 साल बाद हमारा मैप कैसे चेंज हुआ वो बताया गया है। एंड द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ये अपनी साइंटिफिक मेथड के ज़रिए ये मैप्स वगैरह बनाते हैं, राइट। Now oral sources. Now come to the oral sources. Oral sources are nothing but the paulas, folk songs, inspirational songs, है ना, इंटरव्यूज, नरेशंस। तो ये होता क्या है, इसके ज़रिए जैसे कि आप स्टोरी टेलिंग के ज़रिए या पावलाज के ज़रिए, पावलाज आर द मराठी पोइट्री कि व्हाट हैपन इन अर्लियर सोसाइटी, दे कम टू नो फॉर द कमिंग जनरेशन थ्रू द ओरल सोर्सेस, राइट। लाइक जैसे कि हम अपने दादी दादा से कुछ सुनते हैं, फिर हम सुनते हैं, फिर हम अपने आने वाली जनरेशन को सुना सकते हो सारी चीज़ें। इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स लाइक सारे जहाँ से अच्छा, वंदे मातरम, आवर नेशनल एंथम, इट इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इंकलाब जिंदाबाद, आपने ये वर्ड सुना होगा, इट वाज द स्लोगन, राइट। तो कमिंग जनरेशन में आस्क कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट इंकलाब जिंदाबाद, राइट। So it is the sources of modern Indian history. So songs memorized by freedom fighter. Through this inspirational song we can get information about the condition during the pre-independence period and also the spirit of behind the freedom struggle. Now videos and audio visual sources. क्योंकि उस वक्त आज़ादी के वक्त हमारे पास, हम देखेंगे कि हमारे पास गांधी जी के फ़ोटो है, महात्मा ज्योतिराव फूले के फ़ोटो है,
डॉक्टर अम्बेडकर के फ़ोटोज़ है, क्योंकि उस ज़माने में सारी गैजेट्स ये सारे जो मॉडर्न गैजेट्स थे स्टार्ट हो चुके थे, इसलिए ऑडियो विजुअल कम अंडर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सोर्सेस, जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। फोटोग्राफ्स, अब एक डिफरेंस आ सकता है कि फोटोग्राफ्स एंड पेंटिंग, मेडिवल पीरियड में आपने पेंटिंग के बारे में देखा मटेरियल सोर्सेस में, राइट। पेंटिंग ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबल नहीं होती है, उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, लेकिन फोटोग्राफ्स ट्रू कॉपी आपकी दे दी है। जैसे कि हम कैमरे के जरिए हमारा फोटो कैप्चर करते हैं तो हम हूबहू दिखते हैं ना, कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आता है, राइट। सो कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल as compared to painting, and the photographs of a person gives information about the physical features, dressing style etc. अच्छा, एक क्वेश्चन है इस पे, देखिए, explain the following statement with reason. Audio visual recording are considered as the most trustworthy source of the study of modern Indian history. क्यों trustworthy है? Because audio visual recording are considered the most trustworthy, because you can write the answer, because it gives accurate information, and whatever we see, whatever we read, whatever we जनरली हम अगर एक इमेज देखेंगे, पढ़ेंगे कोई चीज़, that retain in our mind for short period of time, but if we visualize, but if we see video things, audio visual things, अगर हम कोई मूवी देख लिया किसी चीज़ को, जैसे आपको वीडियो के जरिए समझा रहा हूँ, तो that it will be audio visual things retain in a mind for a longer period of time as compared to only audio or only images, right? So you can write that reason. Then इसका आंसर तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर गिव्स awaken the people through the whatever the policies made by the British and its effect on India. So that's why, and its effect on India, so that's why peoples of India get awakened and they take and they join the protest and they join the freedom struggle. So that's why newspaper during the British period newspaper also acted as a source of social reformation. इसके जरिए social reformation, क्योंकि उस वक्त lots of social evil present in our society, so our social reformer came one by one to reform the society. Like हमारी इसी बुक में एक चैप्टर है social reformation, कि how the bad evils like सती, देवदासी were present in our society and untouchables like दलितों को साथ अत्याचार होता था, उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं थी. तो ये सारी चीज़ें कैसे हमारे सोशल रिफॉर्मर ने रिमूव करी सोसाइटी से, ये हम आगे के चैप्टर में देखेंगे. और इसके ज़रिए वो अपने मैसेजेस को न्यूज़पेपर के ज़रिए फॉरवर्ड करते थे. जैसे आज हम व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज फॉरवर्ड करते थे, तो सोशल रिफॉर्मर रिफॉर्म करते थे सोसाइटी को न्यूज़पेपर के ज़रिए. दैट आंसर यू कैन राइट. Now recording national anthem like जन गण मन sung by the रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये भी आज भी हम गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो उनकी रिकॉर्डिंग डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए जो जनगण गाई गई है वो हमको मिल सकती है. लाइक जवाहरलाल नेहरू ने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिली तो स्पीच दी थी 1947 14 अगस्त की रात 12 बजे, तो वो स्पीच आज भी हमें मिल सकती है. तो सारी रिकॉर्डिंग की गई है जो कि आज से 70-75 साल बाद भी हमें दैट्स इजीली अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट. एंड द फिल्म्स, इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री की जो दैट एस्टैब्लिश स्टोन रखा गया, दैट वाज स्टार्टेड बाय द दादाभाई फाल्के इन द ईयर 1913 एंड लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ, जिसके बाद अब बहुत सारी एन नंबर ऑफ फिल्म्स बनाई गई, बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल पे बनाई गई, दी गांधी दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट पे. एंड एज कम्पेयर टू, अगर हम देखा जाए, इफ़ यू सी एज कम्पेयर टू द सोर्सेज ऑफ द एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड, द सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर फाउंड इन अबंडेंस एंड वैरायटी. बहुत सारे वैरायटी और रिलायबल एंड एक्यूरेसी सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंशियंट एंड मेडिवल. Now come to the rewrite the statement by choosing the appropriate option. Among the historical sources are based on the modern technology. Modern technology, all obviously audio visual. The Dasdas's Museum in Pune, Aga Khan Palace, and unique discovery of modern technology in 20th century is films.
राइट। इन दोनों का आंसर तो बता चुका हूँ मैं। अगर इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन सॉरी डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट्स आपको एक PDF एक लिंक दी रहेगी, क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप PDF फाइल डाउनलोड कीजिए, उसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। एंड आपके लिए होमवर्क ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। मटेरियल सोर्सेस लाइक बिल्डिंग्स, स्टोन्स, स्कल्पचर्स, स्टैच्यूज, यू कैन राइट एन नंबर ऑफ, मैंने एक्सप्लेन किया हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों स्टूडेंट्स, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरिंग जब आपकी स्कूलें बंद हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों का फ़ायदा हो सके थ्रू आवर वीडियोज़। हम बहुत ही जल्द मैथ्स पर, साइंस पे और ज्योग्राफी पे भी वीडियो बनाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस